Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. So this is the General Science 200 plus Best MCQ series part 1. This particular series has been formulated for your upcoming female supervisor exam, and in this particular series we will solve a mixed bag of questions from all the topics which are relevant and have been mentioned in your female supervisor general science syllabus. Let's move towards the first question. Before moving ahead, I would say that the first few questions they will be based on the syllabus of communicable and non-communicable diseases. All right, that is why I have mentioned over here diseases will be the first topic that will be dealt. And the first question says botulism is a bacterial disease caused by, and the correct option is option B, that is Clostridium botulinum. So option B that is the correct option. And speaking of the main key symptoms which occur if a person suffers from botulism, they include a general weakness and fatigue, you can say. Another symptom is that of a blurred vision, and in some cases the person may suffer from trouble in speaking. All right. Speaking of the other options, for example, Anopheles it is responsible for, Anopheles mosquito is responsible for causing malaria. Okay. Speaking of option number C, that is Treponema pallidum, this is again a bacteria which is responsible for causing a sexually transmitted disease known as syphilis. Okay. Syphilis it is a sexually transmitted disease, an STD. ठीक. And speaking of option number D, that is Bacillus anthracis. ठीक है. This is again a bacterium which is responsible for causing an acute infectious disease known as anthrax. All right. Next question. Question is Rubelovirus causes dash, causing inflammation of the buccal and respiratory passage, along with loss of appetite and skin eruptions. And the correct option is option C, that is measles. So measles is a disease that is caused by the rubelovirus. Therefore measles is a viral disease जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द बकल एंड रेस्पिरेटरी पैसेज हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, एज वेल एज स्किन इरप्शंस होते हैं. ठीक है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है that is around 10 to 12 days. Exploring the other options, we have option A, mumps. Mumps is again a viral disease. This is caused by paramyxovirus. All right. And in mumps, you see a painful swelling of the salivary glands, particularly the parotid glands. ठीक है. Sometimes it may be asked कि इसमें swelling of salivary glands हैं which are responsible for producing the saliva. और अगर specifically आपको mention करना हो या question में पूछ रहा हो, then you have to mention the parotid glands. Okay. Speaking of the option B, that is gonorrhea. Gonorrhea is again a sexually transmitted disease, just like the syphilis जो हमने previous question में देखा. It is again caused by a bacterium. So gonorrhea it's a bacterial disease जिसका नाम है Neisseria gonorrhea. ठीक है. It's a bacterium, you have to remember it. Sometimes it may be asked, don't confuse it with a viral disease because it's a bacterial disease. ठीक है. Which is found mainly in the semen and vaginal fluids of men and women who have the infection. ठीक है. ये semen and vaginal fluids में पाया जाता है of those people who are suffering from this disease, जो infected होते हैं. Therefore जब ऐसी infected person के साथ any healthy person gets in a sexual contact, तो that person may contract this particular infection. ठीक. Next question. Question is which of the following is not true about chicken pox. ठीक है. तो you have to यहाँ पे remember कि not true. So that means you have to find the false statement. ठीक.
Statement 1 is it's caused by varicella zoster virus. ठीक है, सो जोस्टर वायरस आप याद रखेंगे, विच दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल यही वाला वायरस होता है. और स्टेटमेंट नंबर 2 इज इट इज़ नॉन कॉन्टेजियस. दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज चिकन पॉक्स जो है इट इज़ हाईली कॉन्टेजियस. ऑल राइट. Statement 3 is it is characterized by skin rash forming small itchy blisters. This is a true statement. Option D statement says it is an airborne disease because it spreads easily through the coughs and sneezes of an infected person. Therefore it's a true statement. हमें not true बताना था, यानी कि false statement about chickenpox बताना था. Therefore option B is the correct option because it's नॉन कंटेजियस नहीं है, ये हाईली कंटेजियस है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिप्टोकोकस म्यूटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डैश. बिलो गिवन ऑप्शन जो है दे आर द वेरियस डिसीजेस, ये डिफरेंट डिसीजेस के नाम हैं. इनमें से हमें देखना है कि स्ट्रिप्टोकोकस म्यूटेंस कौन सी वाली डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फर्स्ट, स्ट्रिप्टोकोकस म्यूटेंस जो है इट्स अ बैक्टीरियम. ठीक है. और इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डेंटल प्लाग. एक होती है प्लाग, प्लाग, बट दिस इज डेंटल प्लाग. ठीक है. स्पीकिंग ऑफ द ऑप्शंस, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन डी साइफिल्स हमने देखा, मम्प्स भी हमने देखा. नाउ वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन ए, दैट इज द टेटनस. टेटनस जो है it is also known as lockjaw disease. ठीक. Speaking of कि what causes tetanus or which bacterium or virus is responsible for causing tetanus. First, it's a bacterial disease and caused by a motile bacteria that is known as Clostridium tetani, which is responsible for causing the tetanus. ठीक है. This is mainly found in, for example, soil में पाया जाता है, dust में पाया जाता है, and जो manure होता है उसमें पाया जाता है, and ये हमारी बॉडी के injured surfaces के थ्रू आ जाता है. Now इस डिसीज़ को lockjaw disease क्यों कहते हैं? Because this disease is characterized by painful contraction of muscles. इसमें हो जाता है. यूजुअली वो मसल्स या तो नेक की होती हैं या तो वो जॉ की होती हैं. ठीक है. एंड इफ इट मे परसिस्ट इट मे इवेंचुअली बी फॉलोड बाय द पैरालिसिस ऑफ thoracic muscles which are the chest muscles. ठीक है. Moving on to the next question. Alright, so the question is which of these genetic disorders is also known as the trisomy of 21. Okay, and the correct option is option C, that is Down syndrome. ठीक है. So option C जो है वो correct option जाएगा. Speaking of the condition of the trisomy of 21, इसका क्या मतलब है? By that we mean it's a genetic disorder जिसमें क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो 21 होता है ह्यूमंस में, उसकी एक एडिशनल कॉपी हो जाती है. ऑल राइट. एंड दिस कंडीशन वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन. दैट इज़ वाई उसके नाम पे ही इसका नाम पड़ा डाउन सिंड्रोम. ठीक है. इन द ईयर 1866 में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. या बिफोर मूविंग अहेड मैं थोड़ा सा बाकी ऑप्शंस के बारे में बता दूंगी. फॉर एग्जाम्पल जो ऑप्शन ए है दैट इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. दिस इज अगेन अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द क्रोमोसोम नंबर जो पेयर है 47 हो जाता है. ठीक है. सो इसमें एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाता है. We may discuss this about this syndrome in the coming these lectures. And speaking of option B, that is the Turner syndrome. In case of Turner syndrome, this is again a genetic disorder, a non-communicable disease. ठीक है.
दिस इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स. इसमें एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Moving ahead, now we will be dealing with the questions from the mineral nutrition in plants, जो topic है आपके syllabus में. ठीक है, as minerals in plants, तो कुछ questions, few questions will be solved from that section of your syllabus. Okay, so the first question is, the technique of growing plants in a nutrient solution is known as, and the correct option is option D, that is hydroponics. ठीक है, so hydroponics as a technique of growing plants in nutrient solution जो है, this was for the first time demonstrated by a German botanist, a prominent German botanist जिसका नाम था Julius von Sachs. in the year 1860s में उसने ये demonstrate किया. it was for the first time demonstrated by this German botanist. न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस में हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बिकॉज के जो है इट इज द सिंबल फॉर पोटेशियम. ऑल राइट, Ca is the symbol for calcium, and Mg it's the symbol for magnesium. All right, so the question says potassium, calcium, magnesium are the examples of dash mineral nutrients in plants. ठीक, and the correct option is option A, that is the macronutrients. It is because क्योंकि जो mineral nutrients in plants हैं they are divided into two major categories जो essential minerals होते हैं. ठीक है, they are divided into as macronutrients and micronutrients. Micronutrients are also known as trace nutrients because they are required in trace quantities. ठीक है, यहाँ trace amounts में उनकी ज़रूरत होती है. Macro जो है they are required in larger amounts or larger quantities compared to that of the micronutrients. ठीक, speaking of the list of these nutrients, they are the examples of macronutrients in plants. ठीक, and speaking of these nutrients, iron, manganese, copper, molybdenum, etc., these are the examples of micronutrients or trace nutrients. I would suggest कि आपको इन nutrients के at least इन particular elements के symbols पता होने चाहिए in case अगर आपका examiner symbol based question पूछे. ठीक है, फिर आप फंस जाओगे उस केस में. Next question is the essential element components in the chlorophyll and ATP are, and the correct option is option D, that is magnesium and phosphorus. ठीक है, they are the elements which are present in chlorophyll and ATP respectively. आपको बोलना था. that means पहला element आपका chlorophyll का होना चाहिए, that is magnesium जिसका symbol Mg है, and for ATP में जो element present होता है central atom, that is phosphorus. ठीक है, so magnesium and phosphorus. Next question is chlorosis is the loss of dash in plants, and the correct option is option B, that is chlorophyll. So chlorosis जो है it is a condition in plants, condition in case of plants जिसमें chlorophyll which is mostly deposited or present in the leaves, जो leaves में present होता है, उनमें जिन plants में chlorophyll loss हो जाता है तो उनमें क्लोरोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो ग्रीन से येलो हो जाती हैं, दैट इज़ येलोविंग ऑफ ग्रीन लीव्स, और सिंपली लीव्स आप बता सकते हैं, याद रख सकते हैं. ठीक, बाकी जो क्वेश्चंस हैं क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म, क्लोराइड, सो दीज आर द एलिमेंटल एंड कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट क्लोरीन. ठीक है, तो ये जस्ट मेड अप ऑप्शंस हैं. करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल. नेक्स्ट क्वेश्चन. या बिफोर मूविंग एहेड हियर आई वुड सजेस्ट कि जो एलिमेंट्स हैं
जिनकी डिफिशियंसी की वजह से क्लोरोसिस हो जाती है, आई विड सजेस्ट यू टू लर्न अबाउट दोज एलिमेंट्स. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा बता ही देती हूँ. 1 is nitrogen, N for nitrogen, K for potassium, Mg for magnesium, S for sulfur, Fe for iron, Mn for manganese, Zn for zinc and Mo for molybdenum. ठीक है. इन एलिमेंट्स की डिफिशियंसी की वजह से जो है क्लोरोसिस हो जाता है प्लांट्स में. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dash is the concentration of an essential element below which the plant growth is retarded. And the correct option is option C, that is critical concentration. किसी भी एलिमेंट की क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन उस एलिमेंट की होनी ही होनी चाहिए, लेकिन अगर उस कॉन्सेंट्रेशन से नीचे आ जाए उस एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन, देन द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड. और जो कॉन्सेंट्रेशन बिलो दिस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होती है, और द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट बिलो द critical concentration, that is, then we call that element as deficient element. ठीक. That is element whose concentration is below the critical concentration, that is the deficient element. Next question. Moving to the MCQs from your next part of syllabus, that is vitamins. ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है. तो अब हम फ्यू क्वेश्चंस जो हैं वो वाइटामिन्स सेक्शन से करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन B1. ठीक है. विटामिन B1 जो है इसका दूसरा नाम है थियामीन. समटाइम्स इफ़ आस्क्ड इन योर एग्जाम, कभी आपको विटामिन B1 आएगा ऑप्शन में, या कभी आपको थियामीन आएगा. सो थियामीन डिफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज़ हो जाती है, दैट इज़ द बेरी. ठीक है. स्पीकिंग ऑफ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थियामीन डिफिशिएंसी इन योर बॉडी. नंबर 1, देयर इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट एंड विगर. ठीक है. एक तो आपकी जो भूख होती है वो मिट जाती है, एज वेल एज जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, विगर होता है, उसमें लॉस, मतलब आप लो ऑन एनर्जी फील करते हैं. ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम विटामिन B1 और थियामीन डेफिशिएंसी फील्स लो ऑन एनर्जी. ठीक है. लो ऑन एनर्जी, दैट दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स. अनदर वन इज ओडेमा और एडेमा ऑफ लेग्स. एक सॉर्ट ऑफ स्वेलिंग इन द लेग्स देखने को मिलती है. ठीक है. स्वेलिंग. कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. दैट इज़ डिस्टर्ब्ड बाउल मूवमेंट हो जाता है. वीक हार्ट बीट रहता है, एज वेल एज मसल एट्रोपी रहती है. तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स. ठीक है. जस्ट टू हैव एन आइडिया, एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि बेरी डिसीज़ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. ठीक. स्पीकिंग ऑफ द अदर ऑप्शंस वी हैव विटामिन B3 जो है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड और नियासिन. नियासिन और निकोटिनिक एसिड. ठीक है. और निकोटीन, जो भी आपको कभी पूछा जाए. दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पेलेग्रा. ठीक है. स्पीकिंग ऑफ द ऑप्शन बी, विटामिन B2. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन. विल चेंज द कलर. राइबोफ्लेविन. And the deficiency of vitamin B2 जो है, that is riboflavin, it eventually may cause कीलियोसिस. दैट इज़ कि जो माउथ कॉर्नर्स होते हैं ना, उनमें फिशर्स पड़ जाते हैं. लिप्स एंड माउथ एंड लिप्स जो है उनमें फिशर्स पड़ जाते हैं, जैसे होंठ पड़ जाते हैं वैसे ही, लेकिन कॉर्नर्स पे. ठीक. स्पीकिंग ऑफ विटामिन B5, तो इट कॉजेज डर्मेटाइटिस एंड इसका केमिकल नेम है पैंथोथेनिक एसिड. ठीक है. सो ऑप्शन B1 विटामिन B1, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमोरेज excessive bleeding in injury is due to the deficiency of, and the correct option is option D, that is vitamin K. ठीक है. विटामिन K जो है ये एज एन एंटी हेमोरेजिक
फैक्टर है, वाइटामिन है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर the synthesis of prothrombin in the liver which is required for blood clotting. in brief मैं बताती हूँ कि विटामिन के आप ब्लड क्लॉटिंग के साथ एसोसिएट करके रखेंगे विटामिन के को. इन एब्सेंस और इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इंजरीज़ के केस में ऐसे इंडिविजुअल्स को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेजेस हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी जो है इट कॉजेज डैश इन एडल्ट्स. ठीक है. एडल्ट्स में आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिसीज़ हो जाती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्टियोमेलाशिया. ठीक है. ऑस्टियोमेलाशिया जो है इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट्स विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय, इसमें बोन्स जो हैं वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं. दैट मीन्स दे आर वेरी प्रोन टू फ्रैक्चर्स. ठीक है. सो दिस इज़ फ्रेजिलिटी ऑफ बोन्स इसमें हो जाता है इन ऑस्टियोमेलाशिया, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं दे बिकम प्रोन टू फ्रैक्चर्स. Speaking of option A, that is rickets. Rickets is also a disease that is linked to the deficiency of vitamin D. But rickets जो है it occurs in children which are around 6 months to 2 years of age. उन बच्चों में vitamin D deficiency की वजह से rickets हो जाता है. ठीक है. Next question is the deficiency of dash causes pellagra. ठीक है. विच में प्रोग्रेस थ्रू डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ इफ अनट्रीटेड. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन B3. ठीक है. दैट इज विटामिन B3 विच इज ऑल्सो नोन एज नियासिन. ठीक है. दिस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू pellagra, which is characterized by number 1 dermatitis. Dermatitis means जो पहला डी है dermatitis उसका मतलब है inflammation of skin हो जाता है. ठीक है. एक unusual odd dull skin हो जाती है. Second is diarrhea. Third is dementia, that is loss of memory हो जाता है. And eventually if untreated it leads to death. Therefore this syndrome sometimes it's may refer to, कुछ बुक्स इसको एज D3 syndrome रेफर करते हैं and some books refer it as D4 syndrome, but the more appropriate one in my opinion is D4 syndrome because it eventually leads to death if untreated. ठीक है. Speaking of option A, that is vitamin A, as you know vitamin A जो है it is also known as retinol. It's associated or more relevant with the eyes है ना. एंड इसकी डिफिशिएंसी ज़ीरोप्थेलमिया कॉज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस है ना. दोज आर द disorders or diseases associated with vitamin A. Speaking of vitamin B12, that is option C, this is also known as cyanocobalamin. ठीक है. cyanocobalamin जो है it is more associated with anemia. ठीक है. यहाँ पे मैं बता दूँ, स्पीकिंग ऑफ रेटिनॉल तो इट्स मोर विथ ज़ीरोप्थेलमिया. ठीक है. और अनदर वन इज निक्टेलोपिया, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस. ज़ीरोप्थेलमिया क्या है? इसमें कंजक्टिवा जो है उसका केरेटिनाइजेशन होता है, दैट इज़ कंजक्टिविटिस जब एक्सट्रीम लेवल पे जाता है. निक्टेलोपिया जो है इसमें नाइट ब्लाइंडनेस है. सायानोकोबालामिन एज ए सेड कि ये एनीमिया के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है. विटामिन B12, लेकिन कौन सा वाला एनीमिया? दैट इज़ पर्निशियस एनीमिया. ठीक है. स्पीकिंग ऑफ विटामिन C, तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड. एंड इसकी जो डिफिशिएंसी होती है दैट कॉजेज स्कर्वी, जिसे सेलर सिकनेस भी कहते हैं.
All right, starting with the environment and ecology part of the syllabus. So, first question is, which of the following is an example of an artificial ecosystem? And the given options are crop fields, aquarium, both A and B. Option D is only B. And the correct option is option C, that is both A and B. That is crop fields as well as aquarium, both are the examples of an artificial ecosystem, which is a man-made ecosystem. इकोसिस्टम्स जिनको क्रिएट करने में और जिनके सस्टेनेंस के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है. सो दे आर द आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम. जैसे क्रॉप फील्ड में एग्जांपल अगर हम पैडी फील्ड्स की बात करें, अनलेस एंड अनटिल हम सोइंग ऑफ सीड्स करें, है ना, जो भी उसमें पैटर्न होता है, उसके बाद तभी हम वहाँ से एक क्रॉप फील्ड या पैडी फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. सिमिलरली एक्वेरियम में एब्सोल्युटली एक ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, ठीक है. तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ artificial ecosystem. Next question is sunlight, temperature, water, soil are the dash components of an ecosystem, and the correct option is option C, that is abiotic components of an ecosystem. That is जो non living components होते हैं, they form the abiotic components of the ecosystem, while as जो biotic components होते हैं they are the living components, ठीक है. Next question is biosphere is an example of dash ecosystem, and the correct option is option D, that is global ecosystem. Okay, that is एक ऐसा ecosystem जो पूरी दुनिया में है. It is the biosphere which forms the global ecosystem. It's an example of global ecosystem and it functions like a unit of nature, ठीक है. Next question is the vertical distribution of different species occupying different levels is called as, and the correct option is option C, that is stratification. Stratification means कि जब एक इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, one is the biotic and another is the abiotic और biotic. These components जो हैं they interact with each other and they result in the formation of physical structures जो कि हर इकोसिस्टम टाइप का एक करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है. अब उन फिजिकल स्ट्रक्चर्स में या किसी इकोसिस्टम में जो डिफरेंट लेवल्स एग्जिस्ट करती हैं, उनकी जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की. वर्टिकल मीन्स टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल नहीं, टॉप टू बॉटम. डिफरेंट स्पीशीज़ जो ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट लेवल्स को, दैट इज़ नोन एज व्हाट्स स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रीज़ देखें, जो बड़े ट्रीज़ होते हैं, दे ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट. उसके बाद आते हैं श्रब्स विच फॉर्म द सेकेंड स्ट्रेटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड आते हैं फॉर एग्जांपल जो बॉटम पे आते हैं, दे आर द हर्ब्स, जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल ग्रासेस. ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट स्पीशी है, तो ये सारे प्लांट्स ही, इनकी जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप है, दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एन इकोसिस्टम. नेक्स्ट question is dash is a dark colored amorphous substance highly resistant to the microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate, and the correct option is option B, that is humus, ठीक. And being this colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients, ठीक है. humus जो है, it is a reservoir of nutrients. As I said कि it is highly resistant to microbial action and इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो बहुत ही स्लो रेट पे हो जाता है, लेकिन फर्दर इसकी जो डिग्रेडेशन होती है बाय सम ऑफ द माइक्रोब्स, एंड जब ह्यूमस को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक
nutrients or minerals, and this process जो है this is known as mineralization. It's a you can say part of the decomposition process. Next question. Okay, moving ahead with the questions from the biodiversity, which is interlinked to your environment and ecology syllabus. So question says, which of the following is the sobriquet used for the 4 major causes of biodiversity losses? ठीक, and the correct option is option B, that is the evil quartet. ठीक है, so option B जो है ये correct option जाएगा. And these 4 major causes of biodiversity losses जो हैं they include number 1 habitat loss and fragmentation. This is one cause. Another cause is over exploitation, which is also responsible for loss of biodiversity. And जो third cause है that is introduction or sometimes some books may write it as invasion of alien species. ठीक, and third is co-extinctions. हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन मीन्स जब हम उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करते हैं उस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेस्ट कवर को डिफॉरेस्ट करते हैं, पेड़ों को काटते हैं एट्सेट्रा, तो फॉरेस्ट कवर जब हम कम कर देते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, जो लिविंग स्पीशीज़ जिनका वो हैबिटेट होता है, वो फॉरेस्ट, वो घर होता है उनका, एज अ रिज़ल्ट उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है और इवेंचुअली वो डाई आउट हो जाती है, उनका नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. सेकेंड इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, दैट इज़ कि एक बियॉन्ड नंबर, एक बियॉन्ड रेंज के बाद जब हम उनको एक्सप्लॉइट, लिविंग स्पीशीज़ को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं फॉर whether it's a recreational purpose or whether it's hunting or whether it is for some other reasons. So that is another reason for the loss of biodiversity. Third is introduction of invasion of alien species. जब हम एक natural habitat में किसी, जो कि फॉर एग्जांपल एक कोई फ़िश है जो उस लेक में रहती है, जब हम उसी लेक में कोई दूसरी जगह से कोई और फ़िश ला के रखते हैं तो उस वजह से भी जो ऑलरेडी वहाँ पे रहती थी फ़िश, उसका हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है एंड एज अ रिज़ल्ट उसका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. फोर्थ इज़ द को एक्सटिंक्शन. जो लिविंग स्पीशीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, यानी ऐसी लिविंग स्पीशीज़ जो आपस में एक ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप रखते हैं. ठीक है, दैट मीन्स एक दूसरे के लिए उनका रहना बड़ा ज़रूरी है. दैट मीन्स अगर उनमें से एक मर जाए या एक ख़त्म हो जाए, एक का लॉस हो जाए, दूसरे का भी ऑटोमेटिकली लॉस हो जाता है क्योंकि वो उस पर को डिपेंडेंट होता है. ठीक है, जिन लिविंग स्पीशीज़ में को डिपेंडेंसी 100% को डिपेंडेंसी होती है उनमें को एक्सटिंक्शंस हो जाते हैं, मतलब उनमें को एक्सटिंक्शन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ zoological parks, wildlife safari parks and botanical gardens, they are the examples of dash conservation. ठीक है, speaking of the options we have ex situ, in situ, biodiversity, ethical, and the correct option is option A, that is ex situ conservation. ठीक है, ex situ conservation में हम इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो भी लिविंग स्पीशीज़, ठीक है, जो भी लिविंग स्पीशीज़ चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो थ्रेटेंड होती हैं, जो थ्रेटेंड लिविंग स्पीशीज़ होती है, दे आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट से लेके हम उन्हें किसी स्पेशल सेटिंग में रखते हैं सो दैट उन स्पेशल सेटिंग्स में उनको प्रोटेक्शन और एक स्पेशल केयर मिल जाए ताकि वो लॉस ना हो जाए, ताकि उनका 100% लॉस ना हो जाए, दैट इज़ वो एक्सटिंक्ट होने से बचाते हम. ठीक है, तो उनके नेचुरल हैबिटेट से हम उनको निकाल के स्पेशल एंड प्रोटेक्टेड सेटिंग्स में रखते हैं, जैसे कि zoological पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं, एंड इवन बॉटनिकल गार्डन इन केस ऑफ प्लांट्स. ठीक है,
दैट इज़ वन। इन सितु जो है, जैसे ऑप्शन बी है, इसमें इसका उल्टा है, जिसमें हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही प्रोटेक्शन दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सितु कंजर्वेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द ईयर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज़ 1992 में अर्थ समिट जो है वो हुआ था। सी, स्पीकिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन, इसकी इट हैज़ नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बायोडाइवर्सिटी सारे नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये जो अर्थ समिट है, ये एक हिस्टोरिक कन्वेंशन था टुवर्ड्स द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो इट हैज़ बीन अ हिस्टोरिक कन्वेंशन और स्टेप टेकन टुवर्ड्स द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, और ये अच्छा स्टेप था, हिस्टोरिक कन्वेंशन है ये। ठीक है, इसमें सारी नेशंस को बुलाया गया था, सॉर्ट ऑफ ऐसे कह सकते हैं, सो दैट एवरी नेशन ऑन इट्स ओन कैन टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। या शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक हिस्टोरिक कन्वेंशन रह चुका है अक्रॉस ऑल नेशंस के लिए। ठीक है, next question is the dash act to protect and improve the quality of our environment was passed by the government of India act। कौन सा इनमें से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इट वॉज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती थी? नंबर 1 एयर, नंबर 2 वाटर एंड नंबर 3 सॉइल। ठीक, स्पीकिंग ऑफ द अदर ऑप्शंस, सी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 जो था, इट केम इनटू फोर्स इन द 1981, लेकिन 1987 में 81 से लेके 87 में इसे अमेंड किया गया था। और अमेंडमेंट क्या थी इस पोल्यूशन एक्ट में जो है, या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट में नॉइज़ को ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट से 1987। ठीक है, नॉइज़ को रिस्पॉन्सिबल माना गया था फॉर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस। ठीक, स्पीकिंग ऑफ ऑप्शन ए, that is Water Prevention and Control Pollution Act 1974, it was passed by the government of India to safeguard the water resources। ठीक है, to safeguard water resources को बचाने के लिए, उनके कंट्रोल, उनके प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट पास किया गया था। ठीक, नेक्स्ट question is which of the following is used to estimate the amount of biodegradable organic matter in the sewage water। ठीक है, and the correct option is option A, that is biochemical oxygen demand। ठीक है, so biochemical oxygen demand और BOD, इससे हम मेजर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि सीवेज वाटर में कितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ BOD, वो हम BOD से कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं विच आर इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब वो वाटर बॉडी में जिनमें हम ये सीवेज वाटर डालते हैं, ठीक है, दे कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड एज अ रिजल्ट ऐसी जगहों पे हमें, ऐसे पानी में हमें बेसिकली जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर मेथड है, बट यू हैव टू रिमेंबर बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सी यू सम अदर टाइम।